Today's term is past continuous tense. Welcome with Ankur. Past continuous tense. Hope you have studied the simple past tense. Simple past tense जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा confusions होते हैं simple past tense में. ठीक है. So I hope those confusions are दूर now. Those confusions are not there. You have erased those confusions. Now let's begin with the past continuous tense. Past continuous tense का use क्या होता है? Do you know what is the use of past continuous tense? The use of past continuous tense is to indicate an action which is going on in the past. पुराने समय में, बीते हुए समय में कोई काम चल रहा था. जैसे सूर्य कुमार यादव स्काई, अब तो बोलते हैं ना स्काई, the sky full of stars, I'm on a fall apart. ये गाना सुना है? सुनिएगा. Sky full of stars. It's a beautiful song. Okay, so Sky was batting beautifully. Sky was batting beautifully against the USA. ठीक है. तो इसमें क्या कि हमने कहा स्काई यानी सूर्य कुमार यादव यूएसए के खिलाफ बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था. सो रहा था when the action was going on. रहा, रही, रहे, रहे हिंदी में जानने के लिए, for doing it in Hindi so that you can connect it with English. So रहा था, रही थे, रहे थे, तो that is past continuous, an event which was going on in the past. So इसका sentence structure क्या है? Let's begin with that. First thing is subject. Okay, was or were according to the subject, whether singular or plural, plus ing form of the verb is there. ing form of the verb is there. Then object. ठीक है. अब सब्जेक्ट में was किसके साथ यूज होना है? With singular subject always, as I have told you in the simple past tense, and were is used with plural subject. कुछ लोग आई के साथ वर यूज करते हैं, वो डिफरेंट केस है. आई हैव टोल्ड इट इन द सिंटैक्स. किससे बता देंगे आई के साथ वर केवल विश में यूज होता है. ठीक है. तो नाउ लेट्स सी. सिंगुलर का यूज कर लेते हैं पहले. She was playing badminton. She was playing badminton. वह बैडमिंटन खेल रही थी. रही थी, रही थी, रहा था is past continuous tense, right? So was and ing form of the verb, that is subject plus was plus ing form of the verb and object. Now, और sky आप तो कहते हैं. Sky was batting beautifully. Sky बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा था. ठीक है. सूर्य कुमार यादव, स्काई वॉज बैटिंग ब्यूटिफुली. राइट. ठीक. दिस इज अ sentence where the subject is singular. Now if we consider a subject which is plural, plural ले लेते हैं. नाम ले लेते हैं आज. अमन and Ankur are watching. Aman and Ankur are watching a movie. को तो मैं ही हूं. तो मैं मूवी नहीं देख सकता. आप भी देख सकते हैं. अमन एंड अंकुर आर वॉचिंग मूवी. सो सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. अमन और अंकुर दो लोग यूज किए. सॉरी, नॉट आर. वी आर यूजिंग पास्ट कंटिन्यूअस. वर. ठीक है. सो अमन एंड अंकुर वर वॉचिंग अ मूवी. सो वर किसके साथ यूज होना है? प्लूरल के साथ, सिंस वी आर डीलिंग विद द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल में वर यूज करते हैं और सिंगुलर में वॉज यूज करते हैं. वेयर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड वेयर एन एक्शन वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट. पास्ट में कोई एक्शन, कोई काम चल रहा था, उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं. ठीक है. समझ आया? पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर है?
not very difficult, that helping verb was is used and ing form of the verb will be used. ing form जो भी कंटिन्यूअस टेंस है सभी में यूज होगी, क्योंकि हमको निरंतरता दिखानी होती है. वी हैव टू शो कंटिन्यूटी. सो ing form of the verb is used in all of them, है ना, सब में यूज होती है. Okay. So ing form of the verb is used in all the continuous tenses. Since it is past continuous, so was and were is used. Now in negative sentence में क्या करना है हमको? Subject plus was or were and negative verb will be added here. Was and were plus not, that is the negative word. Then ing form of the verb, as I have already told you, ing form of the verb and then object. ठीक है, इस तरीके से बनेगा. सब्जेक्ट was or were, फिर negative word, then ing form of the verb and then object. This is how past continuous tense will be there in the negative sentence. जैसे Spider-Man. The Spider-Man सिंगुलर है तो was not guarding the city. The Spider-Man was not guarding the city. Spider-Man शहर की रखवाली नहीं कर रहा था. So was not helping verb के बाद not and then ing form of the verb. Another interesting example. रोहित शर्मा सभी लोग पसंद करते हैं. What a nice batsman he is, है ना? Was beautiful batsman. His hook shot is so special, right? He plays a hook shot very, very beautifully, and the cover drive also is very, very good. है ना? रोहित शर्मा की cover drive भी बहुत अच्छी है. So रोहित शर्मा सिंगुलर है. Was not playing the last match. पिछला मैच रोहित शर्मा नहीं खेल रहा था. ठीक है, रोहित शर्मा तो T20 में खेलता नहीं है ना. He plays only in one day internationals. He has taken sannyas. Sannyas means retirement from the Test cricket and T20 internationals. Now if the subject is plural, so plural के केस में they were not attending the party. ठीक है, they were not attending the party. वे पार्टी अटेंड नहीं कर रहे थे. ठीक है, पार्टी में नहीं जा रहे थे. सो they के साथ were यूज करना है. ठीक, तो नेगेटिव सेंटेंसेस में were followed by a negative word or was followed by a negative word according to the subject. Now comes the question. As we have already discussed many times that in question क्या करना होता है, केवल सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशंस को आपस में बदलना होता है. सिंपल पास्ट टेंस में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है क्योंकि सिंपल पास्ट टेंस में डिड लग जाता है ना. अदरवाइज इन ऑल अदर टेंसेस इट इज द एग्जैक्टली द सेम. वर्ब्स भी वही यूज होती हैं. सो हियर व्हाट वी विल बी डूइंग, वी विल बी फर्स्ट यूजिंग द वर्ब हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, was और were है. फिर सब्जेक्ट आएगा. ठीक है, फिर क्या आएगा, फिर वर्ब आएगी. बाकी तो सब सेम रहना है. फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा. तो सेंटेंस क्या होगा, was she preparing ब्रेकफास्ट. क्या वह नाश्ता बना रही थी. Was she preparing breakfast? तो she is singular. अगर इसको assertive में बनाना है तो हमको क्या करना है, इनकी बस पोजीशन बदल दीजिए. She was preparing breakfast, वह नाश्ता बना रही थी. और अगर क्वेश्चन पूछना है तो was she preparing breakfast. अगर क्वेश्चन वर्ड ऐड करना है तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड ऐड कर दीजिए. क्वेश्चन वर्ड इससे पहले ऐड कर दीजिए. As I have already told you,
When was she preparing breakfast? बताया आपको हमने. Have I told you? When was she preparing breakfast? वह नाश्ता कब बना रही थी? When was she preparing breakfast हो गया. तो क्वेश्चन वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के पहले प्लेस होगा, फिर बताते हैं. अगेन एंड अगेन एंड अगेन. When something is again and again taught and learned, then we remember it forever. So in any form, as I have told you, when we are starting a verb question with a question word, it will always be followed by a helping verb. हमेशा helping verb उसके बाद आएगी किसी भी टेंस में. कोई भी टेंस हो, बुझे ना बुझे, नहीं बुझे तो देखो 12th फेल, देखो कितनी मेहनत चाहिए. 12th फेल मूवी देखिए, नहीं देखी तो देखिए, आपके लिए है, आपके लिए बनी है. कितनी मेहनत चाहिए किसी चीज को हासिल करने के लिए. सो मच ऑफ हार्ड वर्क. या और हमने वीडियोस डाल रखे हैं, उनको देखिए, जहां पर हमने बताया है, कितने एग्जाम्पल्स दिए हैं. समझ में आया. सो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस क्या होगा? निगेटिव में कहां ऐड होता है? जैसे ही वॉज, तो निगेटिव वर्ड कहां ऐड होगा? हेल्पिंग वर्ब के बाद. ही वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रहा था. ठीक है, नहीं भी ऑब्जेक्ट लिखा तो भी सही है. सो ही वॉज नॉट प्लेइंग. सो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा निगेटिव वर्ड आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी. She was not studying, वह पढ़ नहीं रही थी. She was not studying, वह पढ़ नहीं रही थी. तो helping verb आई, उसके बाद negative word आएगा. So when you are writing a negative sentence, the negative word will be placed after the helping verb, whether in a question, whether in an assertive sentence. Question होगा तो भी negative word helping verb के बाद आएगा. जैसे क्योंकि इसमें तो इंटरचेंज हो जाता है ना. तो वॉज शी नॉट स्टडीइंग हो जाएगा. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट की पोजीशन आपस में बदल जाती है. सो वॉज शी नॉट स्टडीइंग. ठीक है, क्या वह नहीं पढ़ रही थी. तो दिस इज हाउ द पास्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड, वेयर द एक्शन विच वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, पुराने समय में कोई काम चल रहा था, उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. यूज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस. समझ में आया? आई होप समझदार हो तुम, जल्दी समझते हो. आई नो दैट. सो आई होप इट इज क्लियर टू नो यू. इन द नेक्स्ट एपिसोड विल बी in the next episode we will be dealing with past perfect tense. Till then, bye.